چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر لاہور پولیس الرٹ۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران نے موچی گیٹ اور اکبری گیٹ کا دورہ کر کے چہلم جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی جلوس کے روٹ اور منسلک راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ سیف سٹی کیمروں سے روٹ کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہمارے نمائندے عمران جٹ کی اس رپورٹ۔ چہلم حضرت امام حسین لاہور پولیس الرٹ کر دی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران نے موچی گیٹ اور اکبری گیٹ کا دورہ کر کے چہلم میں جلوس کی روٹ پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ مرکزی جلوس کے روٹ اور منسلک رستوں پر بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور سیف سٹی کیمروں سے روٹ کا لمحہ بلمحہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات، گشت جاری کر دی گئی۔ مقررہ داخلی رستوں کے سوا کسی کو داخلے کی اجازت نہیں۔ مرکزی جلوس پر 7,000 سے زیادہ افسران جوان سیکورٹی ڈیوٹی پر، خواتین اور بچوں کی خصوصی سیکورٹی کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار تعینات۔ جلوس کے روٹ پر ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں الرٹ پوزیشن پر سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار مجموعہ میں نگرانی کر رہے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریزرو فورس تیار ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے کہا، جمعے کی مناسبت سے مساجد کی سیکورٹی بھی ہائی الرٹ ہے اور شہری پولیس کے ساتھ تعاون کریں، مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں اور جان و مال کی تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق نے آزادی اور اس کی قدر و قیمت کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ صد شکر ہے کہ آج ہم اپنا ایک اور یوم آزادی تشکر اور عظمت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ حصول آزادی کے بعد اسے قائم رکھنا ایک مسلسل اور کٹھن عمل ہے۔ 78 سالوں سے ہماری نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، عملی تربیت اور فقید المثال بہادری کی مرہون منت ہے۔ ان خیرات کا اظہار ڈائریکٹر بہاولپور میوزیم محمد زبیر ربانی نے یوم آزادی مارکہ حق کے موقع پر میوزیم میں منعقدہ پرچم کشائی کی تقریب میں کیا۔ اس پروقار تقریب میں میوزیم سٹاف اور وزٹرز نے بھرپور شرکت کی۔ محمد زبیر ربانی نے کہا ہے کہ اتحاد، یگانگت اور ہماری قومی یکجہتی نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر وطن کی دفاع کو مزید تقویت دی ہے۔ اس عبرتناک عظمت نے روایتی حریف کو ہر محاذ پہ ناکو چنے چبوائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آزادی دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے جس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا شمار ان خوش نصیب ممالک میں ہوتا ہے جسے اگرچہ اپنے قیام کے ساتھ ہی کئی مسائل ورثہ میں ملے جن کو جلد یا بدیر تدبر اور فہم و فراست سے حل کیا گیا۔ اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل صرف 13 ماہ یہاں کی باغ دور سنبھالی، تاہم پاکستان کو مستحکم کرنے میں ان کی اور دیگر زماں کی جدوجہد مثالی ہے۔ محمد زنیر ربانی نے آزادی کے اصول کے لیے مشاہیر پاکستان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا مستقبل ہماری یوتھ ہے جو ہمارے روشن کل کی ضمانت ہے۔ بعد ازاں انہوں نے پاکستان گیلری میں گزشتہ 2 روز سے جاری کتب تصویری نمائش آزادی کا سفر کتب تصاویر کی زبانی کو وزٹ کیا۔ اس موقع پر محمد زنیر ربانی نے جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب کے اختتام پر سرسبز شاداب پاکستان کے خواب کی تکمیل کے لیے ڈائریکٹر میوزیم نے سبزہ زار میں پودا لگایا اور سب نے وطن عزیز کے ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں حسین حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ اب رخ کرتے ہیں رنالہ خورد کا۔ 14 اگست جشن آزادی کے سلسلہ میں ہمارے ڈسٹرکٹ نمائندہ رنالہ خورد میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جشن آزادی کا جوش و خروش کیسا۔ جی بتائیے گا حسن سجاد صاحب۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں یادگار انوار شہید کالونی پر، جہاں پر سول سولجر موومنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک خوبصورت ریلی کا اہتمام کیا گیا اور ہمارے ساتھ جو قائدین موجود تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور اس سے پہلے قومی ترانہ بجایا گیا، قومی پرچم لہرایا گیا، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے ڈاکٹر اظہر محمد چودھری جو ہماری علاقے کی بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ سب سے زیادہ۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم آج بڑے جوش و خروش سے 78ویں اپنی یہ جو یوم آزادی منا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے منا رہے ہیں یہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، جہاں پہ انوار شہید صاحب نے یہاں پہ شہادت نوش فرمائی 1965 میں، تو یہ ان کی یاد میں ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ 14 اگست ایک ایسا دن ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہم نے بہت ساری قربانیوں اور شہادتوں سے حاصل کیا ہے، اور میں یہ ہمیشہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان لوگوں کو اور بچوں کو، یہ ہمیں ان کو احساس دلانا چاہیے یہ شہادت ہم نے یہ قوم کیسے حاصل کی، یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا ہے۔ اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں ہر شخص کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اس ملک کے لیے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ جی بالکل، یہ تھے ڈاکٹر اظہر صاحب اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جواد طیب صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے کہ 1947 سے لے کر آج تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔
बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। और ये सारा क्रेडिट जो है हमारे शोहदा को जाता है। शोहदा नो डाउट हमारे माथे का एक झूमर है। आज हम जो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक के फजलो करम से हमें जो आज़ादी मिली है, इतना प्यारा मुल्क मिला है, हमें सबको ये ख्याल होना चाहिए कि हम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमें इस मुल्क को रहता क़यामत आबाद रखना है, शाद रखना है इंशाल्लाह। तो हमें सबको मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए उसमें हिस्सा डालना चाहिए। आप सब लोग देख रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीली से कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कितनी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी आफतें आ रही हैं। तो हमें सबको ये फिक्र होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, पानी ठूंस कुएँ बनाएं, पानी का इस्तेमाल अक्लमंदी से करें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दाएँ बाएँ अपने गली मोहल्ले में पौधे लगाएं। जितना ख्याल हो सकता है इस मुल्क का करें। मुल्क हमें मिल गया, हमें इसकी कदर भी करनी है। थैंक यू जी। जो सिविल सोल्जर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहसील सदर अशरफ सज्जा। जी, मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जश्न आज़ादी की, और अपने कायद जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जो हमारा उन्होंने उनका विजन था ईमान इत्तेहाद तंजीम, हमें उस पर अमल करना चाहिए और अपने मुल्क को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। और मैं अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हालिया दिनों में मार्का हक जो है वो जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया। जहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने शमूलियत की, वहाँ पर सहाफ़ियों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेट था। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रावती गौहर। आइए उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में उनका क्या पैगाम है। जी, आज जश्न आज़ादी 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आज की जो जश्न आज़ादी है वो मार्का हक की वजह से आज हमें डबल खुशी है। एक खुशी तो हमें पाकिस्तान की आज़ादी की है और दूसरी खुशी, बल्कि बड़ी खुशी, जो भारत को इस साल हमने, हमारी पाक फौज ने, पूरी कौम ने एक जज्बे के साथ जो शिकस्त दी है वो नाकाबिले फरामोश लम्हात हैं। मैं इस मौका पर पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ इस यादगार रौनवार शहीद कॉलोनी जिनके नाम पे है, जो रौनवार शहीद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं उनके वारसान को भी आज ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो इस लायक हैं कि उन्हें सलाम पेश किया जाए कि जिनके सपूत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं नस्लों को पैगाम दूंगा कि इस तरह के सपूत जो हैं वो घर घर पैदा होने चाहिए। जी, वकला बरादरी के हवाले से हमारे साथ मौजूद है रॉ इमरान वाजिद। आइए उनसे बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरफजात भाई। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी सिविल सोसाइटी की तरह वकला भी आज 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं। हम भी आज़ाद कौम हैं, वकीलों ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, रिनाला खुर्द के हवाले से मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि रिनाला खुर्द में जिस तरीके से वेलफेयर का काम आप लोग डॉक्टर जवाद साहब या दीगर अकाबरीन जो कर रहे हैं, हमारे रिनाला की ये खूबसूरती है कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी मामला हो, हम यकजा इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ बाजू बन के हम अपनी लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जहाँ पे खड़े हैं, जिस यादगार पे हम खड़े हैं, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और सहाफ़ियों के साथ साथ डॉक्टर बरादरी और अंजुमन ताजरा में हमारे सिविल सोल्जर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रैली में भरपूर शिरकत की। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर अंजुमन ताजरा मलक अब्बास अवान। आइए उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से वो क्या कहते हैं। ये साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को अपनी तरफ से, अपनी अलीगढ़ ताजना की तरफ से, पाक सिविल सोल्जर की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक देता हूँ और साथ ही खराज तहसीन पेश करता हूँ उन शहदा को जिनकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान कायम है, और उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस पाकिस्तान को हासिल किया। और साथ ही जो हमारी फ़ौज ने मार का हक जीता है हालिया दिनों में, उसने हमारे पाकिस्तान को एक नई ज़िंदगी दी। और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मिले जुले अल्टीमेटली अल्फाज ये हैं, उनके जज्बात ये हैं कि जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाती है। मेरा साथ दीजिएगा। पाकिस्तान
कोट गुलाम मोहम्मद से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद यामीन खासकली की रिपोर्ट के मुताबिक फाउंडेशन असिस्टेड नवाब पीर बख्श खान टालपुर पब्लिक स्कूल में जश्न आज़ादी के मौका पर एक शानदार और रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, साजा और इलाके की मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। इस मौके पर पूरे हाल में पाकिस्तानी परचम लहराए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। तलबा ने जोशो जज्बे से आज़ादी की अहमियत पर तकारीर पेश की, तारीखी वाक़यात बयान किए, खाके और ड्रामे पेश करके कुर्बानियों की याद ताज़ा की, जबकि मिली नग़मों और सकाफती प्रोग्रामों के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब के माने खसूसी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन मीरपुर खास के डिस्ट्रिक्ट के हेड एजाज अली कलहोरो थे। मेज़बान सैफ पार्टनर बाबर अली खासकली ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया और सिंध की सकाफत का तोहफा अजक पेश किया। इस मौके पर इलाके के तालीमी समाजी रहनुमा भी मौजूद थे, जिन्होंने तकरीब को मजीद वकार बख्शा। खिताब करते हुए एजाज अली कलहोरो ने कहा है कि पाकिस्तान का क़याम एक अजीम जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है, जिसे नई नस्ल तक पहुँचाना और इनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना हर तालीमी इदारे की जिम्मेदारी है। सैफ पार्टनर बाबर अली खासकली ने कहा है कि तालीम मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा हथियार है और जश्न आज़ादी जैसे मौके हमें अपने वतन से मोहब्बत की अहद की तजदीद का मौका फराहम करते हैं। नारक मंडी कोऑर्डिनेटर PP 136 चौधरी अवैस बुटर और चौधरी आमिर एजाज वर्ग की ज़ेर निगरानी MSF यूथ कन्वेंशन का इनेकाद। सदर MSF मियाँ हसीब ने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। हल्का PP 136 में यूथ कोऑर्डिनेटर चौधरी अवैस बुटर और MSF के सदर मियाँ हसीब की जानिब से यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर यूथ विंग कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। हल्का भर के देहातों से यूथ के बेशुमार नौजवानों ने रैलियों की सूरत में कन्वेंशन में शिरकत की। सहपहर 3 बजे तक यूथ का जमे गफीर जमा हो गया। नून लीग की मुकामी क़यादत समेत कारकुनों ने भी भरपूर शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। मैरिज हॉल में बेपनाह रश के बायस तिल धरने को भी जगह ना थी। तकरीब के माने खसूसी सदर मुस्लिम लीग मलिक मोहम्मद यूसुफ, चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, चौधरी तैमूर नवाज जठोल, मलिक अब्दुस्तार गोगी, मलिक शकील अहमद और मेज़बान तकरीब मियाँ हसीब ने यूथ विंग के किरदार और नौजवानों के सियासी शऊर पर रोशनी डाली। इस अज़म का इजहार किया कि MSF को मज़ीद फाल बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे। जबकि रुकन सूबाई असम्बली चौधरी एहसान रियाज ने वीडियो बयान में कहा है कि नौजवान ही मुल्क और कौम का एहसास होते हैं। नौजवानों की तालीम तरबियत के साथ सियासी शऊर आगाही भी ज़रूरी है। MSF के प्लेटफार्म से हम नौजवानों को माशरे का मुफीद शहरी बनाएंगे, जिससे इनका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो और अमनी ज़िंदगी में सियासी बुलंदियों को छू सकें। शामिल कहते हैं नवाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावलनगर के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। पार्टी मामलात और जिला बहावलनगर में पार्टी सूरत हाल से आगाह किया। जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतजार की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के मौका पर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद अब्दुल कादिर शाहीन, रुकन पंजाब असम्बली मियाँ इनाम बारी लालिका भी मौजूद थे। बादशाह राना मोहम्मद इंतजार ने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज मिलने पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। ये एजाज न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी की शानदार क़यादत का एतराफ़ है, बल्कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस विज़न और जहद का भी तसलसल है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के लिए की। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम उम्री में सियासत में कदम रखकर मुश्किल हालात में जमहूरियत की बहाली, आइन की बालादस्ती और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल जदोजहद की। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में उजागर किया और दुनिया के हर फोरम पर मुल्क के वक़ार में इजाफा किया। हाजी राना मोहम्मद इंतजार ने कहा कि निशान इम्तियाज़ दरअसल कौम की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक मेहनत, जमहूरी सोच और अवामी खिदमत की अज़म की पज़ीराई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान इस एजाज़ पर फ़ख्र महसूस करते हैं और ये लम्हा हर जियाले के लिए बाइस मुसर्रत है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और मुल्की तरक्की के मिशन को मज़ीद तेज़ करेगी और मुल्क को तरक्की की खुशहाली की राह पर गामज़न करेगी। पीर महल में यौम आज़ादी और मार्का हक की मरकजी परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में शान शान अंदाज में मुनक्किद हुई। हमारी नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी पीर महल जुल्फ़िकार साबिर, DSP पीर महल चौधरी मुनीर अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इरफान मेहदी, रेगुलेशन ऑफिसर मोहतरमा सलीम फातिमा, फाइनेंस ऑफिसर राना उमैर रजा, चौधरी खालिद सरदार, राना मोहम्मद शफीक, सदर अंजुमन ताजरान चौधरी तारिक कोटली वाले, मुमताज़ हसन शाकिर, चौधरी खावर सुलहरी, सदर अब्बास
वकार, शाहजेब सरगाना, रफाकत चौधरी, लियाकत शूज वाले समेत मौजूद मेहमानों ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी ने शायर मशरिक के अलावा मोहम्मद इकबाल की शायरी से शिरका के आज़ादी के जोशो जज्बे की याद दिलाई। शहरियों, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बच्चों ने सबसे लाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए और मिली नगमों से फिजा को गरमा दिया। मेहमानाने खसूसी ने जश्न आज़ादी के मौका पर केक काटा और म्यूनसिपल कमेटी के सब्जाजार में पौधे लगाकर शहरियों को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर शहरियों ने तहरीक आज़ादी और मार्का हक के हीरोज को खराज तहसीन पेश किया और फाज पाकिस्तान के हक में बुलंद बांग नारे लगाए। खबर शामिल कहते हैं साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में आज IT एसोसिएशन साहिवाल के सदर जाहिद हुसैन मुगल की ज़ेर सदारत 14 अगस्त के सिलसिले में केक काटने का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत IT एसोसिएशन साहिवाल और मलिक कासिम नदीम कामरान MPA ने की और केक काटा। केक काटने के बाद MPA मलिक कासिम नदीम कामरान दोस्तों में घुल मिल गए। मुल्क पाकिस्तान की इस्लामियत के लिए दुआएं की गई। दोस्तों और मोहल्लादारों में केक तकसीम किए गए। मलिक कासिम नदीम दोस्तों के साथ मिलजुल कर बैठे, जिसमें मलिक कासिम नदीम कामरान ने कहा कि ये मुल्क हमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से मिला है। सदर IT एसोसिएशन जाहिद हुसैन ने कहा कि फाज पाकिस्तान ने जिस तरह दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है, इससे मुल्क का वकार दुनिया भर में उजागर हुआ। और तकरीब के इख्तिताम पर जाहिद हुसैन मुगल, सदर और तमाम ओहदेदारान IT एसोसिएशन साहिवाल ने आने वाले मौजूद दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में चेयरमैन IT एसोसिएशन इमरान रामे और दीगर ओहदेदारान, मेंबरान एसोसिएशन समीउल हक, मोहम्मद सुहेल, हैदर इकबाल, चौधरी जुनेद और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल कहते हैं नवाज से यौम आज़ादी के मौका पर वाइटल ग्रुप ने स्टेडियम हाई स्कूल में हस्बे रवायत कबड्डी मेला का एहतमाम किया, जिसमें वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी मोहम्मद सईद अहमद, चौधरी मोहम्मद काशिफ सना, असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर के हमरा, इलाके के मारूफ जमींदार मियाँ एहसानुल हक लालेका ने शिरकत की और कबड्डी खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जश्न आज़ादी के मौका पर हस्बे रवायत गवर्नमेंट हाई स्कूल हारूनाबाद के ग्राउंड में वाइटल ग्रुप ने कबड्डी मेला का एहतमाम किया, जिसमें मारूफ कबड्डी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शौकीन से खूब दाद समेटी। इस कबड्डी मेला में इलाके के मारूफ जमींदार और हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ एहसानुल हक लालिका ने वाइटल ग्रुप के सरबराह हाजी मोहम्मद सईद अहमद, चौधरी मोहम्मद काशिफ सना और असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर के हमरा शिरकत की और फातह टीम के खिलाड़ियों में ट्रॉफी और दीगर इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मियाँ एहसानुल हक लालिका का कहना था कि कबड्डी पंजाब का मारूफ खेल और पहचान है। इसके फरोग के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जाने चाहिए और खेलों के मैदान आबाद होने चाहिए। पीरमहल से खबर शामिल करते हैं। अलाइड स्कूल्स कैंपस में जश्न आज़ादी के हवाले से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के माने खसूसी मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद वसीम सियालवी साहिब और असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी उमर सुल्तान साहिब थे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते किताब बरहान और मदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बातज़ा मुफ्ती वसीम सियालवी साहिब, चौधरी उमर सुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर और चौधरी खावर सुलहरी प्रिंसिपल अलाइड स्कूल्स कैंपस ने परचम कुशाई की। इस मौके पर मियाँ तारिक कोटली वाले, सदर मरकजी अंजुमन ताजवान पीरमहल रफाकत चौधरी, लियाकत शूज वाले, मियाँ असद हफीज़, सामा यासीन, राना मोहम्मद नईम, डॉक्टर मुर्तज़ा अकमल, समीर रहमान खान, मोहम्मद आजम, मियाँ इकराम और मोहम्मद खालिद अहम के भी मौजूद थे। तकरीब में सैकड़ों वालिदैन और तलबा तलबा समेत नुमाइंदीन शहर, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी उमर सुल्तान ने बच्चों से खिताब किए और बयानिया ने पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र किया और तलबा तलबात को किया कि वो अपनी पूरी तवज्जो तालीम तरबियत पर मरकूज रखें ताकि आने वाले कल में वो बेहतर तौर पर मुल्क और कौम की भागदौड़ संभाल सकें। जबकि मारूफ समाजी शख्सियत राना नईम ने भी तकरीब में खिताब किया और कहा कि लाइट स्कूल पीरमहल कैंपस न सिर्फ निसाबी हवालों से बल्कि अखलाकी और तालीमी तरबियत के हवाले से भी तहसील का सबसे बेहतरीन इदारा है। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। म्यूनसिपल कमेटी नारंग मंडी में यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में इलाका भर के मौजूदीन की खुसूसी शिरकत साबिक चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूसुफ, साबिक सिटी नाज़िम चौधरी गुलाम अब्बास गुजर, सेठ सईद अहमद फारूकी, दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा CEO म्यूनसिपल कमेटी नारंग चौधरी आरिफ सिंधु, सदर शाहीन लेबर यूनियन मलिक सलीम रजा ने म्यूनसिपल कमेटी अमले के हमरा परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में शिरकत की। पौधे लगाए गए और जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। म्यूनसिपल कमेटी नारंग मंडी में यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब की गई, पौधे लगाए गए और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। बड़ी तादाद में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि 14 अगस्त हमें इन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने एक आज़ाद वतन के लिए दी। आइए हम सब मिलकर इस अहद की तजदीद करें कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे।
खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शहरियों के लिए एक और इनकलाबी कदम। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से अवाम को अराजी रिकॉर्ड से मुतालिक आसानियाँ फराहम के लिए अराजी मावन की सहूलत का आगाज़। डायरेक्टर अराजी लैंड रिकॉर्ड पलरा लाहौर मोहतरम मोहम्मद शुएब, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल अकरम, ADL नारोवाल वसीम फजल, तीनों तहसीलों के सेंटर इंचार्ज मुनीब बाजवा, मुसंसर गुजर, अदनान अहमद और मोहम्मद फरहान दीगर इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर मोहम्मद शुएब ने इस मौके पर कहा है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अराजी मावन आवाम के लिए बेहतरीन सर्विस को यकीनी बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तारुफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत पलरा से मंजूरी हासिल करने वाले अहले कारोबार अफराद अराजी रिकॉर्ड से मुतालिक खिदमात फराहम करने के मुआहदे में शामिल हो सकते हैं और इनकी खिदमात को सार्फिन तक एक मुकर्रर फीस के एवज पहुंचा सकते हैं। खबर शामिल कहते हैं बावलपुर से ऑन न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तहसील यजमान में 14 अगस्त के हवाले से शजरकारी मुहिम का आगाज डिग्री कॉलेज यजमान में पौधा लगाकर किया गया। शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने वालों में चौधरी अली रंधावा सोशल वर्कर, 88 DB डॉक्टर मोहम्मद इशफाक प्रिंसिपल एसोसिएट डिग्री कॉलेज यजमान, मलिक आशिक सियासी कारोबारी शख्सियत यजमान और रियाज अंजुम रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यजमान, तस्लीम इमरान ब्लॉक ऑफिसर टेलवाला, मोहम्मद जहांगीर ओलक फॉरेस्ट गार्ड, शबीर हुसैन शाह ब्लॉक ऑफिसर कदबला, मोहम्मद सुहेल फॉरेस्ट गार्ड और बेलदार पेरादत्ता भी। खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजा से। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिवीज़न बहावलपुर की सीनियर क़यादत ने पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह का केक काटा, जिसमें डॉक्टर सैयद काशिफ बुखारी वाइस प्रेसिडेंट साउथ पंजाब पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन, डिवीजनल प्रेसिडेंट मोहम्मद उस्मान याकूब, सीनियर नायब सदर डिवीज़न बहावलपुर मलिक अब्दुल सबूर, नायब सदर डिवीज़न बहावलपुर अतहर सईद, चीफ ऑर्गेनाइजर डिवीज़न बहावलपुर चौधरी राशिद अकरम, सदर तहसीली यजमान हाजी अख्तर हंजा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डिवीज़न बहावलपुर मलिक जमशेद अता, महर मोहम्मद मुजम्मिल और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।